ویلکم بیک جی، ایک بار پھر آپ سب کو خوشامدید کہتے ہیں. یہ ABN نیوز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تیسرا دن اور عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن. ونس اگین میری، نمرا اور ABN کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک ہو. بالکل جی. اور ابھی منی بریک پہ تھے ہم، تو ہمیں ایک اور انتہائی اہم شخصیت نے جوائن کیا ہے اور ہمارے لیے یہ تو بہت ہی خوشی کا ویسے موقع ہے سب کے لیے مل جل کے گھر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا، پھر اپنے دوستوں کی طرف آنا جانا، رشتہ داروں کو وزٹ کرنا، یہ سارا. لیکن جو ہماری ابھی کی جو گپ شپ جاری ہے ناظرین، یہ بھی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. گیسٹ ڈائریکٹ جدہ سے آئے اسپیشلی ہمارے لیے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت گیسٹ ہمارے. ان کو ویلکم کرتے ہیں سینیٹر سحر کامران صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب میں ممبر نیشنل اسمبلی ہوں، تھوڑی سی ترقی دیتے ہیں. ابھی آنے والا تھا. ویسے بہت سارے لوگ ہیں ان کو یقین نہیں آتا. نہیں، مجھے کوئی کہتا ہی نہیں ہے MLA، سب سینیٹر ہی کہتے ہیں، تو آئی ایم ہیپی ود دیٹ. وہ سینیٹر ویسے زیادہ اچھا ٹائٹل نہیں. نہیں، سب ٹائٹلز اچھے ہیں. عزت رسپیکٹ ہونی چاہیے. سب سے بیسٹ ٹائٹل تو سر وزیر پرائم منسٹر صاحب. بس جی، وزیر اعظم صاحب ہیں تو بس ہم تو دکھتے بھی نہیں ہوں گے یہاں پہ. آپ کو شیروانی ہے اور وزیر اعظم ہے. آپ کو بہت بہت بدی. آپ کو شیروانی مبارک. آپ کو عید مبارک. آپ کو شیروانی مبارک. اب نہیں بیٹا، ہم بھی جدہ سے آئے تھے 2007 میں، میں اور بڑے میاں صاحب. او جی جی سوری سر. ٹھیک ہے. اچھا، اس اس دفعہ وقت شیروانی نہیں تھی نا ان کے پاس. اچھا اس دفعہ آپ گئے نہیں نا. میں گئی تھی 27 رمضان کے لیے، قیام اللیل میں ادھر ہی تھی، تو بس آج ہی آئی ہوں صبح. چلے انشاءاللہ عید کی اب چھٹیوں کے بعد ملاقات ہوتی رہے گی اجلاس میں انشاءاللہ. بالکل آپ آئیں تو صحیح. انشاءاللہ. سہر صاحب آپ بتائیے گا آپ کی عید کیسی گزری، کس طریقے سے پہلا دن سیلیبریٹ کیا، دوسرا اور اب تیسرے کا کیا پلان ہے؟ اچھا، نہیں بہت اچھی عید گزری کیونکہ میں چلی گئی تھی آخر 27 رمضان کے لیے، اور اس کے بعد فیملی کے ساتھ، میرے ہسبینڈ وہی ہیں، تو اٹ واز گڈ کہ جی آپ جو ہے وہ ریکنیکٹ کریں فیملی کے ساتھ. ایک فیملی ری یونین ہو جاتا ہے. بچے تو نہیں آ سکے، ان کے اپنے ایگزامس وغیرہ تھے، لیکن یہ کہ اچھا لگا سب سے ملا کے. اور پھر یہ کہ حرم بھی جانے کا موقع مل گیا. پھر عید پہ بھی بڑے عرصے کے بعد جو ہے یہ تھا کہ جدہ کے جو فرینڈز ہیں ان سب سے ملاقات ہوئی. صحیح. اچھا، ابھی ہم بریک سے پہلے سب ڈسکس کر رہے تھے، تو یہ وہ والی گینگ ہے جنہوں نے عیدی دی ہے، اینڈ آئی واز دی اونلی ون جس نے عیدی ریسیو کی ہے. آپ کون سی والی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں؟ بچے نہیں آئے تو میں عیدی لینے والوں میں سے تھی. اچھا، دیٹس امیزنگ. ایک اور خاتون ہے. دیکھ لیں پوائنٹ تو منیب کا پروف ہو گیا. میری ساس نے پہلے بھیجی تھی، اور جو میرے ہسبینڈ ہے ہی واز ویٹنگ. میں 22 کے بعد اب گئی تھی سعودی عربیہ، so there were so many promises to be fulfilled. گڈ. تو یہ کہ ابھی ہم بس یہی کہہ رہے تھے، سمی صاحب بھی آپ نے سب سے پوچھا، آپ نے شہباز شریف سے پوچھا ہی نہیں کہ وہ لیتے ہیں یا دیتے ہیں عیدی. نہیں، وہ بات بتا چکے ہیں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا آموں کے بارے میں. نہیں آموں کا نہیں، وزیر اعظم میں تو عیدی دینا بھائی، عیدی کا ہے. مینگو ڈپلومیسی نہیں، ملک کے حالات خراب ہیں. عیدی ابھی ذخائر نہیں ہے ہمارے پاس. دیکھیں خزانہ بھرا پڑا ہے، لیکن میرا بھی والٹ خالی ہے. تو عیدی انشاءاللہ ہم دیں گے. اس پہ IMF کے بعد عید نہیں، دیکھیں اس کا کوئی تعلق نہیں. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں نے انشاءاللہ تعالیٰ، میں بس یہ 4 دن بعد اسمبلی میں اجلاس بلائیں تو میں انشاءاللہ اپنی بیٹی کو عیدی ضرور دیں گے. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو اورنگزیب صاحب ہے نا، انہوں نے ایک لمبی سی چھڑی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. خزانے کی طرف جس کا بھی ہاتھ جاتا ہے نا، وہ یوں مارتے ہیں کڑک کر. میرے پاس دیکھیں ان کو ذمہ داری سونپی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وفاقی کابینہ کا جب اجلاس ہوتا ہے تو ہم سوالات کرتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک کیا ڈیلیور کیا. تو جیسے وہ رپورٹ دے گی سمی صاحب، آپ بھی آ جائے گا اجلاس میں. تو وہ آپ کو رپورٹ دیتے نہیں کہ الحمدللہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا؟ دیکھیں وہ خوشخبری، دیکھیں اسحاق ڈار صاحب بھی بس ماشاءاللہ سے جو کارنامہ انجام دے کے گئے ہیں. اب ان کی طبیعت نہیں ٹھیک. آپ کس کو رپورٹ دیتے ہیں؟ دیکھیں میں تو دیکھیں عوام سے مخاطب ہوں. میرے بیٹے جب وہ پارلیمان کو تو دیں. دیکھیں سہر بیٹی ابھی پلیز زرداری صاحب ناراض ہو جائیں گے میرے سے، ابھی کچھ نہیں کہنا. وزیر اعظم صاحب، لیکن مجھے مسئلہ یہ ہے، خواجہ آصف صاحب تو کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا، دیوالیہ ہو چکا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں آپ مثبت پاکستان، ایک پازیٹو پاکستان، اور انشاءاللہ تعالیٰ نواز کا پاکستان، وہ بالکل نواز شریف صاحب کا پاکستان. اور وہ وقت دور نہیں کہ جب باہر کی دنیا سے لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے اور یہاں پہ نوکریاں ڈھونڈے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے کتنی کی؟ دیکھیں پاکستان میں دیکھیں یہی پیدا ہوئے، یہی پلے بڑے، یہی اس مٹی میں دفن ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. لیکن انویسٹمنٹ کتنی کی؟
देखिए समीर साहब, ये मुश्किल सवाल है। अच्छे ईद वाले दिन हल्की फुल्की बात करें, सेवइयां कितनी खाएंगे? समीर साहब, रुको समीर साहब, ईद ही चाहिए चाहिए ना, शो के बाद चलने हैं। हसनैन आपने कितनी सेवइयां खाई? मैं मियाँ साहब की तरह गिनता नहीं हूँ। नहीं देखिए, सैर साहिबा पूछी थी ना वजीर आजम साहब से, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो क्वेश्चन आपके पास हो सकता है कि भाई सेवइयों की बजाय जो है ना पाए शाही बने हो। हाँ ये भी हो सकता है। लेकिन आप सैर बेटी, निमरा बेटी, आप समीर साहब, आप भी, हसनैन बेटी आप भी, तो आप सब अगर मरियम बेटी के हाथ की वो खीर खा लें, सेवइयां खा लें, आप पूरा पंजाब खा रहा पूरा पंजाब अभी खाएगा ना? पूरा पंजाब खीर खा रहा है, आप उंगली चाटते रह जाएंगे, जो माशाल्लाह बस उंगली ही चाटते रह जाएंगे। अच्छा ये शुतुरमुर्ग जो है ना बार बार बुला रहा है आपको, पुकार रहा है। देखिए, आप खा रहे हैं, आप खा रहे नहीं हैं, आप बुला रहे हैं। मैं आपको शहबाज 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 आवाजें आ रही हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा। अभी समीर साहब ये शुतुरमुर्ग भी कह रहा है मुझे भी नवाज दो। हसनैन इतने ऐसे थे जब मिलने आया करते थे वज़ीर हाउस, अब बड़े हो गए हो, बड़ी जुबान चलने लगी है। मैं मोहसिन नकवी को शिकायत लगाता हूँ, प्लीज गद्दाफी स्टेट में दाखिला बंद कर दे। नहीं सर, अभी तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर लगा रहे थे। देखिए नॉन इनवाइट हो गया। देखिए हमारी तारीफ करो और वजारत ले लो। अच्छा राना सनाउल्लाह को तो दी नहीं आपने वजारत। देखिए बात तो वो जो है कि वो उनसे पूछे उन्होंने क्या कहना है। राहुल साहब तो माशाल्लाह कह रहा हूँ, अल्लाह रहम करे, जिस अंदाज से इनको शिकस्त हुई तो बड़े अपसेट से हैं, लेकिन हमारा इरादा इनको एडजस्ट करने का, पंजाब में भी वफाक में। और इसी तरह आबिद शेर अली को, वो तो बेचारा इतनी उसने गालियां निकाली, फिर भी आपने कुछ नहीं दिया उसको। देखिए उमिया साहब का रिश्तेदार है, ठीक है, तो रिश्तेदार नहीं, मेरा दूध दूसरी मियां साहब का भरा नहीं। ठीक है ये देख लिया सर, वो सच आ गया जुबान। सर घबराए मत सर, पसीना आ रहा है आपसे। मियाँ साहब का उनका ससुराल के जो रिश्ता है, मेरा अलग रिश्ता है उनसे। अच्छा अच्छा ये यानी ससुराल आप समझते हैं ससुराली हैं वो। बिल्कुल भी करनी चाहिए। सभी सब हालात बहुत मुश्किल हैं, 70 से 80% पाकिस्तानी हमारे पास और कुछ अफसोसनाक बात यह है कि वो रोज़ बरोज़ हालात नीचे ही जा रहे नीचे हैं। जाते और वेरी अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में जो मीडिया फोरम भी हैं वो अर्बन पॉपुलेशन के जो मसाइल हैं उनको ज़रा ज़्यादा बयान करते हैं, और जो रूरल एरिया है इग्नोर हो जाते हैं। वो इग्नोर हो जाता है। उसकी वजह TRPs हैं, रेटिंग्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो लोगों के जो हालात हैं ना वो इम्प्रूव नहीं हुए। और मियाँ साहब तो खैर अभी बयान कर रहे थे, तो मैंने इसीलिए कहा था जब ये आए थे कि और चुप हो, क्योंकि ये आमों की बात करते हैं। और जो लोग हैं बेचारे, जैसे अभी सहर साहबा ने जो बात बताई है, बहुत परेशान है। यानी आपके पास अल्फाज नहीं है उनकी कहानियाँ और किस्से बयान करने के लिए। दर्दनाक है। जबकि More आप than ये कहते हैं कि 50 एग्रीकल्चर आपकी मईशत की एग्री backbone इकोनॉमी है। थी, हम हाँ, लोग ठीक एक है। एग्री इकोनॉमी एग्रीकल्चरल लैंड And है। that can change the fate of your country। और उसके साथ हम ये जुल्म कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। रीढ़ की हड्डी लेकिन अब वो मुड़ गई है। सर तोड़ दिए सर। मियाँ साहब आपने रीढ़ की हड्डी को ऐसे कर दिया। 75 साल की हो गई सर आपने उसको शुतुरमुर्ग की बोटी समझ ली है सर। देखिए मेरे पे पूरी जिम्मेदारी देखिए ना आयद करें। ये इमरान खान की नहीं तो हुकूमत मेरी है। भी हड्डी टूट जाए। देखिए मैं बाबर आजम नहीं हूँ, शहबाज शरीफ हूँ, ठीक है, तो खुदा का वास्ता मेरे ऊपर पूरा देखिए सब देखिए जो पिछली हुकूमतें हैं आप उनसे पूछे ना। वो आप ही की थी ना। तो आपके देखिए सर 2018 में किसकी हुकूमत आई? पंजाब में किसकी हुकूमत थी? सारा टाइम आपकी उस्मान हुकूमत रही है। बुज़दार 2018 में हम कहाँ पे थे? नहीं वैसे तो 2021 में हाँ। 2021 में उस वक्त के FBR के चेयरमैन, उस वक्त के गवर्नर पंजाब, उस वक्त के रज़ाक दाऊद ये कह रहे थे कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। हाँ Yes. ठीक है, सो वी हैव टू एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। हम सबको जो अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस हैं और अपनी अपनी गलतियां हैं उनको आइडेंटिफाई करना करना होगा, पड़ेगा। कि करना होगा। दिस वुड बी द बिगनिंग। हम एक दूसरे पर इल्जाम ना हाँ डालें। ये ब्लेम गेम हाँ, ये नहीं होना चाहिए। के ओवर होना कम चाहिए। नीचे करना, गलती नीचे मननी, मारे जाओगे ना। देखिए ऐ नहीं करना, मैं तो गलत रिवाइज नहीं कर सकता। ईद का खुशी का मौका है। मेरा तो ये पैगाम है कि ये छोड़े इल्जामात, किसने क्या कहा, आए मिल के इस पाकिस्तान को इसका मैशत मफाहमत की बात होनी चाहिए, मफाहमत की बात करते हैं। मिसाल शहबाज मैशत शरीफ साहब तो एक बहुत बड़ी मिसाल है। अच्छा हसनैन, यही अगर मैं थोड़ा सा टॉपिक, क्योंकि ऑफ कोर्स आप भी पब्लिक में जाते हैं, आपने क्या ऑब्जर्व किए हालात बाहर के एक नॉर्मल एवरेज पाकिस्तानी के? देखिए हालात तो बहुत बुरे हैं, बल्कि एक दफ़ा मैं और निमरा भी बाहर गए थे तो उस वक्त भी हम जब लोगों के हालात देखते थे तो बहुत बुरे। लेकिन मैं Election थोड़ा सा वाले इसको, रोज़ हम गए क्योंकि थे। मेरी फील्ड
स्पोर्ट्स किया है तो मैं उधर भी रिलेट करता हूँ कि 2021 में शहबाज शरीफ साहब वापस आए थे, जिस तरह सैर बता रही थी, उस वक्त स्पोर्ट्स की पोजीशन क्या थी? आपकी क्रिकेट टीम जो है वो नंबर 1 थी, आपके बाबर आजम नंबर 1 बैटर थे, आपके शाहीन शाह अफरीदी नंबर 1 बॉलर थे। आप सिर्फ स्पोर्ट्स को रिलेट कर लें कि आज इस वक्त आपको ये पता नहीं है कि आपकी 11 में कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे, ठीक है? आपने बाबर आजम को कप्तान तो बना दिया, साथ उनको तोहफा दे दिया आमिर का भी और इमाद वसीम का भी, जो कि 3-3 साल से रिटायर हुए हैं। तो ये अनसर्टेनिटी जो है ये पूरी, आप जिस भी इंडस्ट्री में जाएंगे ना, आप स्पोर्ट्स में जाएंगे, आप साफत में जाएंगे, आप इवन एयरपोर्ट पे चले जाएंगे ना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज्यादा वैसे बेइज्जती आप है। ये बातें इधर देख के करें तो ज़्यादा बना हसनैन, बात आ जाओ। ये हसनैन इतने से आए थे मेरे पास। नहीं, हसनैन बात इतने की निकल गई है। ये बताओ, डिपार्टमेंट क्रिकेट क्या मैंने खत्म की है? बात that- that निकलेगी is a तो good दूर question. तलक जाएगी। That is a good question. डिपार्टमेंट क्रिकेट इमरान खान ने बंद क्या 2018 में मैं फैज़याब हुआ था? बताएं। किया। किससे? यानी कि मुझे इख्तितार मिला आप था। भी तो फैज़याब हुए ना, देखिए, उनके बड़े भाई से फैज़याब तो हुए आप भी। बड़े आवाज आ गया। हम फतहयाब होने वाले मुझसे। बड़े भाई से। ठीक है, डिपार्टमेंट क्रिकेट में मैं इलेक्शन के कैंपेन के लिए मैं गया, जलसा था। सर वो तो मैंने सुना था आपकी गाड़ी पे हमला भी हो गया था। एक नौजवान, यार बात तो सुन लो मुनीब, एक नौजवान बार बार बच के भागे थे सर वहां से। वजीर आजम साहब ये देखें मुनीब, गुस्ताखी कर रहे मुनीब, हैं। गुस्ताखी। मैं अता तारड़ को शहर लगा दूंगा, फिर स्क्रीन पे नहीं आओगे, ठीक है? ठीक है, तो मुनीब हुआ कुछ इस तरह कि मैं वहाँ पर उस नौजवान से पूछा कि क्या करते हो? कहते क्रिकेट खेलता था जी जी। लेकिन कहते जब से इस इमरान नियाजी की हुकूमत आई, डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म होगी, अब मैं रिक्शा चलाता हूँ। कितने अफसोस की बात है। बहुत अफसोस। सर आपकी इसकी हुकूमत में जो बहाली लोग के लिए- रिक्शा चलाते थे अब वो साइकिल चला रहे। चलाने लायक नहीं रहे सर। बात वही है, मईशत कहें, मिसाक मईशत। सैर बेटी बताए ना इनको क्या था वो बिल्कुल मिसाक मईशत, कितनी बड़ी नहीं मिसाल नहीं, थी। दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। मैं तो ये समझती हूँ कि सब पे जिम्मेदारी है। अफसोस होता है कि जब कौमी असम्बली का इजलास होता है तो बजाय कि हम संजीदा गुफ्तगू करें, सिर्फ नाराबाजी, Yes, शोर शराबा, yes. यानी गालिब अहम गलोच तरीन बल्कि। जो गुफ्तगू है, अहम तरीन जो नकात है, उनके ऊपर भी जो है ना सिर्फ जो है वो शोर शराबे में कहीं गुम हो जाते हैं, पता नहीं लगता। तो मैं समझती हूँ कि एक इजलास पे इतना पैसा ज़ाया होता है, हमें जो है ना मतलब में संजीदगी से देखना चाहिए। मुल्क जो है ये आप जो मैंडेट है वो एक ऑब्लिगेशन है, उसको हमें रियलाइज़ करना चाहिए और हम सबको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। लेकिन अगर वो रियलाइज़ कर लेंगे, सहर साहबा मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो फिर तो बहुत सारे लोग जो असम्बली में बैठे हैं वो तो नहीं बैठ सकते। ये तो मैंडेट फॉर्म 47 का है। नहीं देखें, तो जो शोर शराबा होता है वो भी इसीलिए होता है। देखें नहीं, मैं समझती हूँ कि गलत रिवायतें हैं, वो 2018 में भी गलत थी, वो 2013 में भी गलत थी। नहीं, लेकिन जो लोगों के वोट्स नहीं माने गए, सही काउंट नहीं किया गया, इस पे भी तो कोई बात करें ना। देखें बात ये है कि 2013 में आपको पता है कि सिक्योरिटी सिचुएशन के नहीं, नाम पे अभी नहीं नहीं 24 एक मिनट दो सिक्योरिटी सिचुएशन के नाम पे पीपल्स पार्टी को कैंपेन नहीं करनी थी, एक सूबे तक महदूद करने की कोशिश की गई, लेकिन जो जमहूरियत का तसलसल है ना वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद 2018 नताइज से जमहूरियत का तसलसल कहाँ से 2018 आ में गया? जिस तरीके से आरटीए सिस्टम फेल हुए, जिस तरीके से जो है मैं समझती हूँ कि एक बहुत बदतरीन रिगिंग की बुनियाद डाली गई, लेकिन आपका हम तो है इत्तेफाक। नहीं और अभी भी देखें, आपको देखना पड़ेगा, यस कहीं मार्जिन होगा रिगिंग का, कहीं नहीं भी होगा, बट वी हैव टू। अब आप जो आ गए हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने कोई ओथ लिया है, उसको भी तो देखें, उसको क्यों रिग कर रहे हैं, अपने ओथ को क्यों रिग कर रहे हैं।